A very good afternoon, class. A very good afternoon, class. Good afternoon, ma'am. Good afternoon again, ma'am. Good afternoon. So, moving ahead to our syllabus, we have now more about the Supreme Court of India, right? In India, we have single unified and integrated judicial system. In single unified system, the system which is only managed at a single level means there is only one court. In single unified system, we have only Supreme Court of India, and in the integrated judicial system, we have the state high courts. State high courts are basically the high courts which are present in every state. There is a system to have a high court in every state that is known as the integrated judicial system. And single unified system means the Supreme Court of India. So, Supreme Court. The Supreme Court is the highest judicial authority of India. As you all know that we have three types of court: High Court, Supreme Court, High Court, subordinate courts or lower courts. In lower court, we have the Consumer Protection Court. Means the category of the court which is suited for our मतलब जो हमारे इतनी हाई प्रायोरिटी इश्यूज नहीं होते हैं तो उनके लिए हमारी लोअर कोर्ट्स होती है, ऑन द और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट जुडिशियल सिस्टम. इट इज प्रेजेंट on a high level. It is on the top. Means beyond this there is no court. So the decisions done by the Supreme Court is all should follow those decisions. Beyond the decisions of the Supreme Court, we cannot go to any court. Beyond the decision of the subordinate court, we can go to the High Court. We can sorry. We can sue the High Court decision to the Supreme Courts, but we cannot go beyond the Supreme Court. So Supreme Court is the highest court of India. It consists of the Chief Justice and 25 other judges. How many? एक Chief Justice होते हैं जो head होते हैं and consist of 25 other judges. One is Chief Justice and 25 other judges are present in the Supreme Court. The Parliament may increase the number of judges if it deems necessary. The Parliament can increase only the number of judges. In any issue, if they needed the more judges to settle down the issues in a very rapid manner, only they can increase the number of judges, right? To begin with, beside the Chief Justice, there were only 7 other judges. The Parliament has increased the number of judges from time to time. पहले कितने होते थे? Chief Justice के अलावा केवल 7 होते थे. But according to the time, according to the need, it has increased by 25. No, increased by 7. As in 2005, there are 25 justices beside the Chief Justice, who is called the Chief Justice of India. जो Chief Justice होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? The Chief Justice of India. ठीक है, वो क्या होते हैं? सुप्रीम पावर होते हैं सारे जजेस के ऊपर, जो जजेस के हेड होते हैं सारे. द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. Who made the appointment of these Supreme Court judges? These are all appointed by the President of India. The Chief Justice and other judges of the Supreme Court, number of judges is 25. Chief Justice plus 25 judges of the Supreme Court are appointed by the President of India. Our President of India appoints the Chief Justice of India. While appointing the Chief Justice, the President is constitutionally required to consult such other judges of the Supreme Court as he deems proper, but outgoing Chief Justice is always consulted. जब हमें कोई भी नया Chief Justice appoint करना होता है in the Supreme Court, what we do, the outgoing Chief Justice, जो Chief Justice जा रहे होते हैं, उनकी भी importance होती है, उनसे हम पूछते हैं whether we are going to appoint as a Chief Justice is suitable for that or no. और जो भी senior judges present होते हैं in the campus, we take the advice of them also. There is no constitutional requirement to do so. While appointing other judges, the President is bound to consult the Chief Justice and other senior judges if he deems proper.
अगर उसको लगता है कि हम इनको अपॉइंट कर सकते हैं तो वो उसको ज्यादा हर लोगों से पूछने की जरूरत नहीं है. He needs to consult only the judges present in the Supreme Court and the outgoing Chief Justice of India. Whether there is a vacancy or likely the vacancy in the Supreme Court, the Chief Justice and 4 other senior most judges consider various names and recommend the name of the person to be appointed as the judge of the Supreme Court. क्या होता है कि अगर कोई भी वैकेंसी होती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो जो चीफ जस्टिस होते हैं और कोई भी 4 अदर सीनियर जज होते हैं वहां के, वो क्या करते हैं, रिकमेंड कर देते हैं नेम्स जिनको हम एज अ जज सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट कर सकते हैं. दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन द रूलिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट. कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट मीन्स अ पैनल ऑफ जजेस, एक पैनल जजेस का जो डिसीजन लेगा पर्टिकुलरली किसी एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट में. ठीक है, तो द फाइल द कॉन्स्टिट्यूशन स्टिल प्रोवाइड्स दैट द प्रेसिडेंट इज द अपॉइंटिंग अथॉरिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस. द रूलिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज सिंस 1919 बिकम वर्चुअली बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट. अब जो भी सुप्रीम कोर्ट की जजिंग होती है, जो भी सुप्रीम कोर्ट फाइनल करता है, 1990 कंसिडर कर दिया गया है कि वो सारी चीजें जो है मतलब वर्चुअली जितना भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है प्रेसिडेंट के लिए भी, वो सारा प्रेसिडेंट को भी क्या होगा, एक्सेप्टेबल होगा. The power of the judge selection of judges has passed on to a group of Supreme Court judges called the Collegium of the Court. जितनी भी पावर होती है सिलेक्शन की जजेस की सुप्रीम कोर्ट की, उसको हम बोलते हैं कॉलेजियम ऑफ द कोर्ट. जितनी भी पावर, द पावर ऑफ सेलेक्टिंग द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज कॉल्ड द कॉलेजियम पावर ऑफ द कोर्ट. The president now performs the formality of appointing the nominee of the Supreme Court after the law ministry formally recommend these names to him. फिर क्या करते हैं, जब उनके नेम बता दिए जाते हैं तो we work out for further प्रोसेस. अब क्वालिफिकेशन क्या होती है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, उनका टाइम पीरियड कितना होता है, और हाउ वी कैन रिमूव दोज जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट. अ पर्सन इज क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जज ओनली ही और शी इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड इफ ही शी फुलफिल्स वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस. कोई भी पर्सन सुप्रीम कोर्ट का जब हो सकता है जब क्या हो कि उसने 5 साल एज अ जज काम करा हो इन हाई कोर्ट और किसी भी हाई कोर्ट, 1 or 2 मोर देन 2 सच कोर्ट्स, और किसी भी ऐसे सच कोर्ट्स इस टाइप की कोर्ट्स में. ठीक है, कितना काम कराओ, एटलीस्ट 5 साल काम कराओ. he or she has been for at least 10 years as an advocate of a high court or for 2 or more than 2 such courts. कि वो क्या एज अ एडवोकेट काम करो, या तो एज अ जज काम कराओ हाई कोर्ट के अंदर या उससे रिलेटेड ऐसी किसी भी कोर्ट में. ठीक है, उसके बाद या उसने 10 साल काम करा एज अ एडवोकेट इन हाई कोर्ट और एनी ऑफ सच कोर्ट. फिर सी है आपका, he or she in the opinion of the president are distinguished jurist. कैसा हो प्रेसिडेंट की नजरों में, एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हो, मतलब एक अच्छा डिसीजन देने वाला, एक अलग टाइप का बंदा हो जो जूरी प्रोसेस करता है. द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होल्ड ऑफिस टिल दे अटेन द एज ऑफ 65 ईयर्स. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जितने भी जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो कितनी एज तक रह सकते हैं पावर में, 65 तक. अ जज में वॉलंटरी रिजाइन बिफोर एक्सपायरी ऑफिस टर्म. एनी जज कैन वॉलंटरी रिजाइन टू. अगर किसी जज को लगता है कि वो अब आगे काम नहीं कर सकता तो वो वॉलंटरी रिटायरमेंट भी ले सकते हैं. इन एक्सेप्शनल केसेस द सुप्रीम कोर्ट जज मे बी रिमूव बिफोर द एज ऑफ रिटायरमेंट अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. और ऐसा भी होता है कि अगर हम किसी जज को सुप्रीम कोर्ट के हटाना चाहते हैं बिफोर द टाइम पीरियड तो हम हटा सकते हैं एज देयर इज अ प्रोसीजर इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू. Thus, a judge of the Supreme Court can be removed from office by the order of the President passed after an address by each house of the Parliament supported by a majority of total membership of the House and not less than 2/3 of the member of the House present and voting passed in the same sessions. अब अगर हमें कोई भी जज हटाना है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, हमारे पास पावर होती है कि हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटा सकते हैं. कब हटा सकते हैं, जब दोनों हाउसेज में उस चीज के लिए वोटिंग होती है. एक्सक्यूज मी, जब दोनों हाउसेज में उस चीज के लिए वोटिंग होती है, और जब उन दोनों हाउसेज में उस चीज के लिए वोटिंग होगी तो उसमें एक ये कंडीशन होती है कि जो भी हमारे पार्लियामेंट का जज होता है
सॉरी, जो भी हमारे पार्लियामेंट में प्रेजेंट मेंबर्स होते हैं उनमें टू थर्ड मेजोरिटी चाहिए होती है हमें फॉर रिमूवल ऑफ दैट पर्टिकुलर जज, ठीक है। नॉट लेस देन टू थर्ड ऑफ द हाउस प्रेजेंट पास्ड इन द सेम सेशन हैज बीन प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर सच रिमूवल ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और कैपेसिटी। मीन्स कि अगर हमें लगता है कि किसी भी जज ने मिसबिहेवियर करा है या कुछ भी बैड थिंग करी है तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों सभाओं से पास करेंगे बाय द टू थर्ड मेजोरिटी, राइट। So far, proceeding for removal were initiated only in case against a judge of the Supreme Court, but he or she could not be removed because the resolution could not be passed by the पार्लियामेंट। जब तक पार्लियामेंट के अंदर कोई भी रेजोल्यूशन पास नहीं होता है जज को हटाने का, तब तक वी कैन नॉट रिमूव दैट पर्टिकुलर judge. It is clear that Supreme Court judges enjoy security of tenure and the executive cannot arbitrarily remove them. तो इसमें यही होता है कि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस होते हैं दे यूजुअली एंजॉय देयर पीरियड ऑफ 60 अप टू द एज ऑफ 65, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव के पास ऐसी कोई भी पावर्स नहीं होती है सो दैट दे कैन रिमूव देम फ्रॉम द system. No person who has held office of a judge of the Supreme Court is allowed to plead as an advocate in any court or before any authority within the territory of India. If someone is working as a judge in the Supreme Court, like if I am suppose I am a judge in the Supreme Court, then I am not supposed to do any advocate to become an advocate in the court of any national territory of India. Fine, the judges of the Supreme Court are paid such salaries are determined by the Parliament from time to time. Their salaries are also decided by the Parliament of India. They are revised by the Parliament of India from time to time. ठीक है, एक बार और रिवाइज करते हैं। India judicial system में we have two types of court, the Supreme Court of India, the state high courts, and the subordinate courts or lower courts. Supreme Court is the highest court and state high courts are present in every state of India, right? The Supreme Court consists of Chief Justice of India and consists of 25 other judges of India. These judges have been appointed by the President of India with the consult of the present judges of the Supreme Court and with the outgoing Chief Justice of India. Qualification, tenure and removal. The qualification is that they should have at least 5 years of judge as a high court, or they should have worked as a 10 years as an advocate, and he may be a distinguished judiciary. The Chief Justice of India and other judges of the Supreme Court hold office till they attain. कब तक रिटायर हो सकते हैं? 65 years तक। उसके बाद कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, किसको बोलते हैं? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। The Supreme Court is a court of record. It has two implications. All its decisions and judgments are cited as precedent in all courts of the India country. It means कि जितने भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट लेती है, क्योंकि ऑल द डिसीजंस आर टेकन बाय द एक्सपर्टाइज, द पर्सन हु आर फेमस इन देयर फील्ड, जितने भी डिसीजन वो लेते हैं सारे के सारे डिसीजन किस पे अवॉइड होते हैं? लोअर कोर्ट्स में। वो सब उनके लिए एग्जांपल सेट करते हैं कि अभी फ्यूचर में इनके साथ कोई भी प्रॉब्लम आती है रिलेटेड या इस टाइप से कोई भी केस आता है तो जैसे सुप्रीम कोर्ट ने सॉल्व करा था लोअर कोर्ट को वैसे ही करना है। एज अ कोर्ट ऑफ इंडिया द सुप्रीम कोर्ट कैन इवन सेंड अ पर्सन टू जेल हु हैव कमिटेड कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। अगर उसने किसी ने कोर्ट को काटने की कोशिश करी है या कोर्ट की हानि पहुंचाने की कोशिश करी है तो वी कैन सेंड देम टू जेल। Yes, there is a question. The judges of the Supreme Court are appointed by the, yes, anybody? President. Yes. The Supreme Court of India consists of the Chief Justice and dash other judges. How many? Ma'am, 26 होने चाहिए। 26 is not present here. One is the Chief Justice of India. It is written in the question, and other are 25. Yes, ma'am. Court consists of one Chief Justice and 25. Right. The judges of the Supreme Court retire at the age of 65. Yes. A person who is distinguished dash in the opinion of the president may be appointed as a judge of the Supreme Court. Jurist. Jurist, yes. Can you tell me what is the meaning of jurist? Yes.
What is the meaning of jurist? मैंने बताया भी था, but I want to know from you what is the meaning of jurist? क्या मीनिंग होता है jurist का? पहले कोर्ट में आपको एक ज्यूरी सिस्टम चलता था। आयुष, लाइक speak louder. Yes. तेज बोलो आयुष थोड़ा सा। स्टार्टिंग में आपको कोर्ट में ज्यूरी सिस्टम होता था, उसमें लाइक एक ग्रुप ऑफ सेलेक्टेड पीपल होते थे जिनके डिसीजंस अगर यूनानिमस है तो वो जज के भी डिसीजन को ओवरराइड कर सकते थे। Jurist. So jurist, a person who is distinguished jurist in the opinion of the president may be appointed as a judge of the Supreme Court, right? Jurisdiction of the Supreme Court means what type of decision making is held with the hand of Supreme Court. The scope of powers of Supreme Court to hear and decide cases is called its jurisdiction. कि किस टाइप की पावर्स है सुप्रीम कोर्ट के पास एंड हाउ कैन दे यूज देयर पावर्स टू सॉल्व द cases, that is called the jurisdiction of the Supreme Court. The Supreme Court has three types of jurisdictions. First is original, second is appellate, and third is advisory. First is original jurisdiction. Original jurisdiction, there are certain cases which fall within the exclusive jurisdiction of the Supreme Court. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की एक्सक्लूसिव मतलब उसकी एक्सक्लूसिव कैटेगरी में आते हैं. It means that all such cases begin or originate in the Supreme Court only. कि ये केसेस केवल कहाँ शुरू हैं, केवल सुप्रीम कोर्ट से ही शुरू हुए. ये कहीं और से नहीं आए हमारे पास कि लोअर कोर्ट से आए हैं अपर कोर्ट में. ये शुरू ही सुप्रीम कोर्ट में हुए हैं और ये कहीं किसी और कोर्ट में ले जाए भी नहीं जा सकते हैं. ठीक है, ये केसेस होते हैं आपके जैसे डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द वन साइड एंड वन और मोर स्टेट ऑन द अदर साइड. ठीक है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कोई डिस्प्यूट है एक साइड में और दूसरी साइड में एक से ज्यादा स्टेट के बीच में डिस्प्यूट है. ठीक है, उसके बाद है डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वन और मोर स्टेट्स ऑन वन साइड एंड वन और मोर स्टेट्स ऑन द अदर साइड. किस किस के बीच में हो रहा? पहला डिस्प्यूट तो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो एक साइड में और दूसरी साइड में एक या एक से ज्यादा स्टेट हो. ठीक है, सेकेंड केस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो और एक या एक से ज्यादा स्टेट हो एक साइड में और तीन पार्टीज आते हैं. थर्ड में है disputes between two or more states or there is a dispute between one or more states. So in original jurisdiction we have three types of dispute. In first case the dispute between the government of India, पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हो या एक से ज्यादा स्टेट में हो. ठीक है, सेकेंड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हो एक स्टेट में हो एक या एक स्टेट में हो और फिर उनके एक और एक स्टेट में हो. फिर थर्ड में है कि दो या दो से ज्यादा स्टेट्स में हो. सेकेंड है ओरिजिनल जुरिडिक्शन में the Supreme Court has been investigated with special powers in the enforcement of fundamental rights. In this connection it has the power to issue direction or writs. सुप्रीम कोर्ट के पास ही पावर है, स्पेशल पावर्स हैं फंडामेंटल राइट्स का एनफोर्समेंट करने की, उनके ऊपर लोगों को लगाने की कि हाँ आपका ये फंडामेंटल राइट है. आपको भी अगर फंडामेंटल राइट के खिलाफ से कोई रिट डालना चाहते हो यू कैन ओनली रिटेन इन अ सुप्रीम कोर्ट. नेक्स्ट है केसेस अंडर पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन. इट कैन बी हियर डायरेक्टली. जो भी केसेस पब्लिक के, जैसे अभी आपने दिल्ली में देखा है कि क्या क्या सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेती रहती है गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के लिए कि हाँ इन्होंने इतना भुगतान किया था कोविड में, उन्होंने इतना अनाज देने की बात करी थी बट दे आर नॉट गिविंग. तो दिस इज व्हाट कॉल्ड द पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन. तो ये सब उसी के केसेस होते हैं जो डायरेक्टली क्या सुनती है, सुप्रीम कोर्ट सुनती है. Next is appellate jurisdiction. The power of the superior or high court to hear and decide appeal against the judgment of a lower court is called appellate jurisdiction. It means कि जो भी कुछ हम lower court से सुनकर आते हैं, decision लेकर आते हैं, जो भी हमारे cases lower court में चल रहे होते हैं और जो lower court decide करती है और उनको forward कर दे और फिर हमें वो acceptable नहीं होते decision, we move to the upper side of the court that is known as the Supreme.
तो अपीलेट जुरिडिक्शन में वही सारे केसेस दिए जाते हैं. द सुप्रीम कोर्ट हैज वास्ट अपीलेट जुरिडिक्शन. इट हियर्स अपील अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट. ये क्या करती है, जितने भी हाई कोर्ट ने डिसीजन लिए होते हैं, जैसे आपने भी देखा होगा टीवी में, मूवीज के अंदर या सब जगह कहते हैं कि हाँ ठीक है मैं तो हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा और जीत कर आऊंगा केस. तो दैट इज व्हाट दे ऑल कम अंडर द appellate jurisdiction. Thus, it is the highest and the final court of appeal. ये आपको सबसे हाईएस्ट कोर्ट होती है, इसके बाद वो किसी कोर्ट में नहीं जा सकते. द डिसीजन which is given by, which has been given by the Supreme Court is binding to all the parties. If one of the parties to a dispute is not satisfied with the decision of the High Court, one can go to the Supreme Court and file an appeal. The appeal can be filed in civil, criminal and constitutional cases. अपील्स भी केवल 3 टाइप के केसेस में हो सकती है. पहला केसेस होते हैं हमारे सिविल केसेस में, क्रिमिनल केसेस में एंड कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस में. सिविल केसेस, डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर है, भाई भाई में लड़ाई हो गई है प्रॉपर्टी के लिए, या गवर्नमेंट से आपका कोई इशू है प्रॉपर्टी के रिलेटेड, मैरिज के जितने भी केसेस हैं, मनी के जितने भी केसेस हैं, कॉन्ट्रैक्ट एंड सर्विस, जितने भी हमारी सर्विस का कोई इशू, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, गवर्नमेंट जॉब में कोई हमारा इशू है, दे कैन all be reason here in the civil cases. If a civil case involves a substantial point of law of public importance needing interpretation of the constitution or law, an appeal against the high court decision can be made to Supreme Court. इन सब points के लिए हम high court में अपील कर सकते हैं. ठीक है. सॉरी, हाई कोर्ट के डिसीजंस की अपील हम सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं. अर्लियर द फाइनेंशियल लिमिट ऑफ सच सिविल केसेस वाज ₹20,000, but now according to the 30th amendment of 1972 there is a minimum amount for taking a civil appeal to the Supreme Court. If substantial question of interpretation of law or constitutional appeal can be made against the decision of the high court. पहले फीस कितनी थी? 20,000 थी. ठीक है, बट नाउ अब वो बढ़ गई है आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ 30. नेक्स्ट इज अपील्स इन द क्रिमिनल केसेस. पहले हमने सिविल केसेस में पढ़ा कि सिविल रिलेटेड जितने भी मैटर होते हैं वो आप वहां डिस्कस कर सकते हो. नाउ कमिंग ऑन टू द क्रिमिनल केसेस, जितने भी क्राइम के केसेस होते हैं जिनमें कुछ ना कुछ मिसहैपनिंग्स होती है, लाइक an appeal can be made brought to the Supreme Court against a high court decision in a criminal case in a number of situations. Firstly, if a high court set aside an appeal or an order of acquittal passed by the lower court and award death sentence to the accused, he may bring an appeal to the Supreme Court by the law. कि अगर उसने ये करा है कि डेथ की अपील, गवर्नमेंट हाई कोर्ट ने उसको क्या दे दी है, फांसी की सजा दे दी है, तो वो अपील करना चाहता है तो ही कैन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट. Secondly, appeal can be made to the Supreme Court if the High Court withdraws a case from a lower court to itself, declares the accused guilty, and award death sentence. In the sentence, also appeals can be made as a matter of right and without certified from the High Court. ऐसा भी हो सकता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से लोअर कोर्ट में कोई केसेस चल रहा है, ठीक है, और उसमें भी डेथ की सजा सुना दी है, तो दे कैन ऑल्सो मूव डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट. पहले वाले केसेस में क्या था कि लोअर आपकी हाई कोर्ट से आई है तो हम उसे सुप्रीम कोर्ट में सुन सकते हैं. सेकंड केस में क्या है कि अब हमारी जो लोअर कोर्ट से हमें सेंटेंस की सजा मिली है तो हम उसको कहाँ भी पहुंचा सकते हैं, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में भी फाइल कर सकते हैं. द अपील इन केसेस अदर देन दीज टू कैटेगरीज may also be brought to the Supreme Court, providing the High Court grants a certificate that the case is fit for appeal to the Supreme Court. मतलब और वो सारे केसेस जिनको सुप्रीम कोर्ट बोल दे, हाई कोर्ट बोल दे कि हाँ ये केसेस सुप्रीम कोर्ट में सुने जा सकते हैं कि फिट फॉर द अपील ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. इन केस वेयर द हाई कोर्ट refuses to certify a case to be fit for appeal to the Supreme Court, one may seek special leave to appeal for the Supreme Court itself. The Supreme Court may grant such a special leave in its discretion, but only in rare cases. अगर ऐसा होता है कि लोअर कोर्ट जो है कोई भी सर्टिफिकेट नहीं देती है इस टाइप का कि फिट फॉर अपील टू द सुप्रीम कोर्ट, तो वो क्या कर सकते हैं कि स्पेशल अपील ले सकते हैं फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट से कि हाँ हमें जो है ये केस यहाँ पे लेना है, बट दैट अपील वर्क्स ओनली इन सर्टेन केसेस, इट नॉट ऑलवेज वर्क्स आउट.
फिर थर्ड है हमारी अपील्स इन कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस। कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस मीन्स जहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात होती है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हुआ होता है या मिसयूज होता है। अ कॉन्स्टिट्यूशन केस इज आइदर अ सिविल डिस्प्यूट नॉट कंसर्निंग अ क्राइम। क्राइम नहीं होता, कोई भी सिविल डिस्प्यूट होता है। इन दिस केस अराइजिंग आउट ऑफ डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लाइक जैसे फ्लैग का इशू होता है कि फ्लैग के हमारे कुछ रूल होते हैं कंट्री की फ्लैग के, दैट हम अपने कंट्री के फ्लैग को जो है बियॉन्ड वेस्ट नहीं कर सकते हैं यूज, है ना, और उसको हमेशा हमें फ्लोर से ऊपर ही रखना होता है, ठीक है। तो अपील्स इन द कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस इज ऑलवेज डन इन द सुप्रीम कोर्ट, राइट। नेक्स्ट इज एडवाइजरी जुरिडिक्शन। एडवाइजरी जुरिडिक्शन क्या होती है? दिस पावर इम्प्लाइज कोर्ट राइट टू गिव एडवाइस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है? एडवाइस दे सकती है। अभी जो हमारा डिसीजन आया है 17 तक, हाँ जी संजय शर्मा जी बोलिए। मैम अभी जो आप बता रहे थे मैम, फांसी वाला जो अपर कोर्ट होते हैं सुप्रीम कोर्ट तक, मैम इसके बाद भी तो जो कल्प्रिट है वो आज जा सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। यस 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 किशन यस, दया वेरी याचिका करके होती है यस 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 यस, आप ये। जा और सकते एक हो। और मैम था, एक हाँ और बेटा। डिफरेंस था मैम जैसे चंबल वगैरह के डाकू थे जो सरेंडर करते थे मैम, उन्होंने भी मैम लोग मारे होते थे तो उनको ये कैसे मिल जाता था? बेटा मैम एक बहुत बड़ी मुझे ये नहीं पता कि उनको डेथ सेंटेंस है उनकी या नहीं हुई है, बट अच्छा, पहले का जुरिडिक्शन सिस्टम और अब का सिस्टम में बहुत फर्क है। पहले हमारे यहाँ जो चीजें होती थी ना वो केवल मनी बेस्ड भी थी, और लोग भी इतने ज्यादा ना एजुकेटेड नहीं थे और इतना ज्यादा क्राइम भी। लैक ऑफ एजुकेशन। बट अभी क्या है, क्राइम भी बहुत ज्यादा है, लोग भी बहुत एजुकेटेड हैं, और हमें क्या करना है, हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा बहुत आगे बढ़ गया है। पहले फाइलें कहीं कभी की कभी दबी रहती थी, बट यस अब क्या मैम। हो गया है, कोविड में भी ऑनलाइन भी डिसीजन दिए हैं जजेस ने, ऑनलाइन भी वर्क करा है। तो क्या है कि धीरे धीरे हमारा सिस्टम एडवांस होता जा रहा है, बट फिर भी ये है कि बहुत सारी चीजों पे हमें वर्कआउट करना बहुत जरूरी है। जुडिशियल सिस्टम पे भी वर्कआउट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लॉज तो पढ़ रखे हैं सब जजेस ने, सबने सब कुछ कर रखा है, बट जो सही और गलत का फर्क है अभी भी लोग उसका सही यूज नहीं करते हैं। जो सही चीजें हैं उनको सही तरीके से पेश नहीं करा जा सकता। अब जैसे एडवाइजरी जुरिडिक्शन में आते हैं हम, तो इसमें क्या था, अभी मॉर्निंग में सभी ने सुना होगा, कल शाम को शायद कुछ एडवाइजरी हुई थी इशू, मुझे नहीं पता, शायद वो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट से ही आया था। कई बार पॉल्यूशन से रिलेटेड, जैसे दिल्ली में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो जाता है, और अभी यस मैम। वैक्सीनेशन का भी इशू हुआ था, दैट हैज बीन ऑल टेकन केयर बाय द सुप्रीम कोर्ट। हम वो लॉकडाउन का क्वेश्चन प्रपोजल दिया पूछती है है अभी, सेंटर से। सुप्रीम कोर्ट डिसीजन बताएगा। हाँ, यस मैम। सुप्रीम कोर्ट ही बताता है उसमें सारे डिसीजन की, हाँ अब इतना पॉल्यूशन हो रहा है, तो ऐसे पूछती है दिल्ली गवर्नमेंट से कि ऐसा क्यों है। क्यों हो रहा है, रीजन के लिए। हाँ, रीजन के लिए कि हाँ ऐसे कैसे हुआ, इतनी वैक्सीन हुई थी, वो हर गवर्नमेंट से पूछते हैं इतना वैक्सीनेशन होना था, आपने इतना प्लान करा था, तो वो अभी तक क्यों नहीं हुआ। ठीक है, अगर कहीं कोविड गाइडलाइंस का यूज नहीं हुआ है सही से, तो और वहां पे केसेस निकल गए हैं, तो गवर्नमेंट कैन आस्क देम व्हाई यू हैव मेड सच टाइप ऑफ मैनेजमेंट कि कोविड गाइडलाइंस वहां पर फॉलो क्यों नहीं हुई है। ठीक है, उसके अलावा इलेक्शन में जो भी चीजें होती हैं, लेट हो गए इलेक्शन कराने में, या और भी चीजें हैं इलेक्शन से रिलेटेड, डेट भी पूछती है सुप्रीम कोर्ट कि आप कब कराने वाले हैं इलेक्शन। कोई भी हमारे पब्लिक प्लेस का लॉस होता है, कुछ भी होता है, तो ओनली द सुप्रीम कोर्ट इज कैन आस्क देम। ओके, तो ये होती है एडवाइजरी जुरिडिक्शन। आयुष मेरे को स्क्रीनशॉट भेज देना बेटा अटेंडेंस का। This power implies court right to give advice if sought under advisory jurisdiction. The President of India may refer any question of law or public importance to Supreme Court for its advice, but the Supreme Court is not bound to give advice. मतलब Supreme President of India can also take the advice from the Supreme Court, but Supreme Court is not bounded to give advice to the President.
अगर प्रेसिडेंट को कोई एडवाइस लेनी है, ही कैन टेक एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि सुप्रीम कोर्ट उसको एडवाइस दे ही दे. इन केस द एडवाइस और द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट इज सेंट टू द प्रेसिडेंट, he or may not accept it. But if it is sent to the president, maybe it is in the hands of the president, he may accept it or not. Just wait. Hello. Yes, court is not binding as a so far. Whenever the court has given its advice, the president has always accepted it. The court refused to give its advice on the question whether a temple existed at the spot where Babri Masjid was built at Ayodhya. So this is all what कि Supreme Court can ask. ठीक है, वो ही decision दे सकती है कि बाबरी मस्जिद क्यों built हुई अयोध्या में, कि so this is all what called the advisory jurisdiction. Now the guardian of the constitution. Who is the guardian of our constitution? That is also very important. कि ठीक है हमारे पास constitution तो है, but हमारा guardian कौन है constitution का? Right? Yes, Ayush, have you sent me the attendance? Rupal, send me. Okay, ma'am. Okay. I think Ayush is busy somewhere. Okay, class, that's all for today, है ना? जल्दी से ले लो attendance रूपल, मेरे को send कर दो. कल पढ़ेंगे. हाँ, guardian of the constitution and protector of rights. Okay. Yes. Rupal taken? Yes, ma'am. Okay, that's all for today. Have a good day, class. Hopefully in the coming 5 to 10 days, we will be winding up with our syllabus. Fine. So be ready for your assessments, right? Have a good day. On Wednesday, परसों मैं आपका 100% MCQ लूंगी. Fine. Okay. Goodbye, class. Good afternoon, ma'am. Thank you, ma'am. Welcome. Bye bye.